Hello everyone. Today's topic is butter oil, and we will take the different points in this chapter, that is definition, composition of butter oil, nutritive value, method of manufacturing, packaging, storage and distribution, defects and their causes, and prevention. So we will start from the definition. It refers to the fat concentrate obtained mainly from butter or cream by the removal of practically all the water and solid not fat content. ठीक है? So the terms milk fat, anhydrous milk fat, dry butter fat, dehydrated butter fat are used with butter oil. ठीक है? तो when we talk about the chemical composition, तो आप केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू ये आप समझ पाएंगे कि बटर ऑयल से, इफ वी आर सेइंग इन द डेफिनेशन की रिमूवल ऑफ प्रैक्टिकली ऑल द वाटर एंड सॉलिड नॉट फैट कंटेंट. ठीक है, तो आप देखिए कि द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द परसेंटेज in the composition of butter oil as butter fat 99.5 to 99.8%, moisture 0.1 to 0.3%, acidity in terms of oleic acid. ये बहुत याद करने वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि बटर ऑयल में we take acidity in terms of oleic acid, that is 0.2 to 0.5%, and peroxide value 0 to 0.1%. ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू आप लोग ये देख सकते हैं कि मॉइस्चर परसेंटेज इज ओनली 0.1 to 0.3%. दैट मीन्स the fat concentrate obtained mainly from butter or cream by the removal of practically all the water. ठीक है, तो वाटर मॉइस्चर परसेंटेज 0.1% से 0.3% है, और इससे बटर फैट जो है 99.5 to 99.8% है. ठीक है, if we talk about the nutritive value, तो this is the richest source of milk fat amongst western dairy products and also expected to be high in fat soluble vitamins A and D, because आप लोग जैसे जानते हैं कि फैट soluble vitamins जो हैं वो A and D होते हैं. तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट जो है which is rich in फैट, तो उसमें फैट soluble vitamins present होंगे. those are vitamins A and D. ठीक है, so there are various methods of manufacture. Those are direct evaporation method, at atmospheric pressure, under vacuum, decantation, centrifugation followed by vacuum drying, and direct from cream by de-emulsification and centrifugation. ठीक है, so the first method of the formation of butter oil is the direct evaporation. Okay, so this is a batch process and it is carried out at atmospheric pressure or under vacuum. ठीक है, तो जैसे इंडियन मेथड्स में हम अपने घर में घी बनाते हैं, तो इट रिजेंबल्स टू द इंडियन मेथड ऑफ घी प्रोडक्शन. एंड in this method, we place the butter in large open vat or pan, which is heated to a steam jacket or coil. Okay, and firstly, the heat is applied slowly till the butter melts, and after this, the temperature is gradually increases. Butter is stirred continuously, and the temperature is about 108 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आप लोग याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो 108 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है. और फ़ारेनहाइट में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है, 226 टू 230 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, 226 से 230 डिग्री
फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पहुंचेगा. So when all the moisture is evaporated, तो क्या बचेगा रेजिड्यू में? बटर फैट, और जिसको कि हम ड्रेन कर लेंगे फ्रॉम द कर्ड एंड filtration is done. The product is obtained by this method is somewhat darker in color. ठीक है, और इसमें थोड़ा कुक्ड फ्लेवर भी होता है. ठीक, तो दिस इज द डायरेक्ट इवेपोरेशन मेथड. ठीक, नेक्स्ट मेथड इज डिकेंटेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड इज डिकेंटेशन विच इज ऑल्सो अ बैच प्रोसेस. इसमें भी क्या करेंगे कि वी टेक द बटर और उसको अलाउ टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड. इसमें इसको स्टरिंग नहीं करते हैं, अनडिस्टर्ब फॉर सफिशिएंट टाइम, जब तक कि ये 3 लेयर्स में स्ट्रेटिफाइज ना हो जाए. दीज लेयर्स आर टॉप लेयर इज स्कम, मिडिल लेयर इज फैट एंड बॉटम लेयर इज सीरम. ये आप लोग याद रखिएगा कि डिकेंटेशन में 3 लेयर्स बनती हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, स्कम, फैट एंड सीरम. ठीक है, fat layer is drawn off from the top and cooled, and clean separation cannot be obtained by this process. ठीक है, and fat recovery is also low. So this is an uneconomic method और इसको हम large scale पर use नहीं करते हैं. ठीक है, third method of manufacture is centrifugal separation followed by vacuum drying. ठीक, इसको हम कॉन्टिन्यूस मेथड कह सकते हैं और ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देता है और इट इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बटर ऑयल फ्रॉम द बटर. तो अगर हम इसके एक फ्लो डायग्राम की बात करें तो यू कैन take reference from the book of outlines of dairy technology. The writer is Sukumar Day. ठीक है, इसमें जो चैप्टर है बटर ऑयल, उसको आप पढ़िएगा. आपने जो भी चीज की किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू शुड रीड द बुक्स. आपको किताबों से पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, तो इफ वी टेक द फ्लो डायग्राम of the method of manufacture by centrifugal separation followed by vacuum drying. So it contains the receiving of the butter, unsalted butter. That is also an important point. इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि we take the unsalted butter, then melting is done. After that, tipping is done in the tank, then oil separator, float. Next step is the float controlled balance tank, then vacuum pan and butter oil receiving kettle, then packaging and storage at room temperature. तो इन सारे ही पॉइंट्स को, जो फ्लो डायग्राम्स के जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो एक जो 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 फर्स्ट पॉइंट है उसको आप याद रखेंगे कि अनसॉल्टेड बटर लेंगे. ठीक है, अनसॉल्टेड बटर को सबसे पहले हम वर्टिकल जैकेटेड स्टेनलेस स्टील सिलिंड्रिकल टैंक में रखते हैं विद एन एजिटेटर. ठीक है, एंड इफ द बटर इज कोल्ड एंड हार्ड, ठीक, तो क्या करेंगे, उसको हम वी कट इनटू द स्मॉल पीसेस बिफोर हीटिंग. ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है. आफ्टर दैट स्टीम इनलेट टू द जैकेट इज ओपन एंड एजिटेटर रन एट लो स्पीड. तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने याद रखना है कि पहले आपने अनसॉल्टेड बटर लिया, उसके बाद आपने स्टीम इनलेट किया. ठीक है, देन टिपिंग टैंक विच इज अ जैकेटेड एट द बॉटम. ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जो टिपिंग टैंक है वो बॉटम से जैकेटेड होता है और फिल्ड विथ क्लीन वाटर और हीट किया जाएगा 77 टू 79 डिग्री सेंटीग्रेड, 77 से 79 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इफ वी टेक इट इन टू फ़ारेनहाइट तो 170
से 174 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतने टेम्परेचर तक हीट करेंगे बाय ओपनिंग द स्टीम इनलेट ऑफ द जैकेट। ठीक, तो ये जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो दैट इज गिवन थ्रू द स्टीम। ठीक है, आफ्टर दैट द सेंट्रीफ्यूगल ऑयल सेपरेटर इज स्टार्टेड and when it gain full speed, hot water from the tipping tank is run into it. ठीक, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से याद करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे वीडियो के थ्रू और याद करेंगे। ठीक है, when the water has completely run out, discharge valve of the butter melter is opened to allow the melt to enter into the oil separator। तो अब जो है वो मेल्ट को हम कहाँ लेंगे? ऑयल सेपरेटर में, और जो रेट ऑफ फ्लो है उसको रेगुलेट करेंगे टू अवॉइड ओवरफ्लो। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मेल्ट है वो सेपरेट होगा इनटू ऑयल एंड सिरम। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मेल्ट है वो दो चीजों में सेपरेट होगा, ऑयल एंड सिरम। ठीक है, ऑयल कहाँ जाएगा? इनटू द फ्लोट कंट्रोल बैलेंस टैंक एंड into the vacuum pan due to suction। ठीक है, जहां पर क्या किया जाएगा? डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर याद रखो। डिहाइड्रेशन एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फ़ारेनहाइट में अगर हम करेंगे तो 133 टू 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वैक्यूम होगा 57 टू 62 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टेम्परेचर कितना है और कितना वैक्यूम है। ठीक, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखना। लास्ट में क्या करना है? वैक्यूम इज ब्रोकन एंड butter oil allowed to flow by gravity into receiving kettle for the cooling, packaging and storage is done at the room temperature। ठीक है, तो ये these are the different methods for the manufacture of butter oil। Next method is directly from cream by de-emulsification and centrifugal separation। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज de-emulsification of cream। ठीक है, एंड used in various continuous butter making processes। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि de-emulsified fat की मेल्टिंग होगी, देन क्लैरिफिकेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड वैक्यूम हीटिंग। ठीक है, तो these are different methods of manufacturing of butter oil। ठीक है, cooling is next step is the cooling, which is an important point। it should be cooled and crystallized under careful control। ठीक है, टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन क्रिस्टल्स। इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, और हमें अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? इट मे बी ऑब्टेन्ड बाय रैपिड सुपर कूलिंग अप टू 13 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड stirring the mass during forced crystallization by adding 5 to 15% of finely crystalline fat from a previous batch। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है कि सुपर कूलिंग 100 से 13 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और स्टिरिंग करनी है मास की। ठीक है, फोर्स क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, कहाँ कैसे कि 5 to 15% ऑफ फाइनली क्रिस्टलाइन फैट फ्रॉम प्रीवियस बैच, पहले बन चुका है उसमें से हमने थोड़ा सा उसमें ऐड करना है। ठीक है, इट यील्ड्स अ स्मूथ होमोजीनियस मास। ठीक है, विच डज नॉट सेपरेट इनटू सॉलिड एंड लिक्विड लेयर्स। जब हम इसको स्टोर करेंगे तो वो अलग अलग लेयर्स में, सॉलिड और लिक्विड लेयर में सेपरेशन नहीं होगा ऐसा करने से। ठीक, तो दिस इज द कूलिंग।
After that, next point is packaging, storage and distribution. When we talk about the packaging of the butter oil, तो क्या करेंगे कि exclude of the oxygen. It is an important point. ठीक है, to avoid re-aeration of the product. ठीक है, because we are making it from the vacuum dehydrator. ठीक है, either by partially or a completely deaerated form. ठीक, and we should also take care to leave a minimum of air in the head space of the container. ठीक, या फिर हमने क्या करना है, हेड स्पेस में इनर्ट गैस उसमें उसको जो एयर है उसको रिप्लेस करना है विद द इनर्ट गैस. ठीक, तो इस चीज को, ये पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे. ठीक है, और पैकेजिंग जो करेंगे टिन कैंस में करेंगे, और ये टिन कैंस आर गुड फॉर बल्क एंड रिटेल पैकेजिंग, दोनों के लिए अच्छे होते हैं, है ना. और वुडन कास्ट में भी कर सकते हैं, टब्स में विद सुटेबल लाइनर्स, जिसमें बटर पेपर या प्लास्टिक फिल्म हो, उनको भी यूज किया जाता है. ठीक है, एंड कार्डबोर्ड कंटेनर्स, बैग्स और प्लास्टिक कोटेड, ये भी, इनको भी यूज किया जा सकता है. बट cans should preferably be lacquered on the inside surface with food enamel to prevent corrosion. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे. ठीक है, फूड इनेमल होना चाहिए इनसाइड जो कैंस हैं जिसमें हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, पैक कर रहे हैं, सॉरी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टोरेज विच इज अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ठीक है, dehydrated butter fat develops a oxidized flavor, ठीक है, in a month. So we should use, or we use the antioxidant ethyl gallate. ठीक है, concentration 0.05%. It increases the shelf life up to 3 months. Important point है, इसको याद रखेंगे कि स्टोरेज जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में किया जाएगा. ठीक, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर आ सकता है ड्यूरिंग स्टोरेज, तो वी यूज द एंटीऑक्सीडेंट. एग्जांपल इज इथाइल गैलेट, concentration 0.05%, and it increases shelf life for 3 months. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज next point I'll take is market quality of butter oil. Color of butter oil prepared from cow milk is deep yellow. ठीक है, and if we prepare the butter oil from the buffalo milk, it is white when solid and colorless when liquid. Okay, and the product from both cow and buffalo milk has a slightly cooked flavor, which we also can the caramelized flavor. ठीक है, and it depends on the quality of the raw material and the method of production. और अगर हम टेक्सचर की बात करेंगे तो if there is no special conditions for cooling, तो जो टेक्सचर होगा इसका पेस्ट लाइक टेक्सचर हो. ठीक, तो these are the physical qualities. ठीक है, physical qualities on of the butter oil. और chemical quality की अगर हम बात करेंगे तो जो हमने composition पढ़ा है ना, different composition, कि कितना बटर फैट है, ऑयल कितना है, एसिडिटी और पेरोक्साइड वैल्यू कितनी है. ठीक है, तो these are
different points of butter oil. In the next video, I'll take the keeping quality, antioxidants as preservatives, judging and grading of butter oil, and various defects and their uses. Okay, so इट इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द बटर ऑयल. इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए. रेफरेंस बुक मैंने आप लोगों को बताई है, आउटलाइंस ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, एंड द राइटर इज सुकुमार डे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में बटर ऑयल के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनको मैं ऐड करूंगी. थैंक यू सो मच.